अमेरिका इस समय बहुत मुश्किल स्थितियों से गुजर रहा है और वहां की नई सरकार के लिए कोरोना की महामारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इस समय राष्ट्रपति जो बाइडेन को अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति अपना समर्थन दे रहे हैं और इनके नाम है बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश और बराक ओबामा। इन 3 में से 2 पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की अपनी पार्टी यानी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं और जॉर्ज डब्ल्यू बुश उनकी विरोधी पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी से हैं। लेकिन इसके बावजूद इन तीनों ने अपने सारे मतभेद भुलाकर जो बाइडेन को अपना पूरा समर्थन दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। अब आप यह सोचिए कि क्या भारत में ऐसे बयानों के बारे में आप सोच भी सकते हैं? यहां पर विपक्षी दल शासन का विरोध करना ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं और अगर कोई नेता ऐसा करे तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती है। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपतियों ने एक साथ खड़े होकर जो बाइडेन को कैसे अपनी शुभकामनाएं दी हैं और कैसे उन्होंने जो बाइडेन को कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पीछे खड़े हैं और हमारा पूरा समर्थन आपको है। जब कभी आपको लगे कि हम किसी काम आ सकते हैं, आप हमें बताइए। Obviously, there was a personal element to see my former vice president become the 46th president, to see Kamala Harris as our first woman vice president. But more broadly, I think inaugurations signal a tradition of a peaceful transfer of power that is over 2 centuries old. Well, I think the fact that the 3 of us are standing here talking about a peaceful transfer of power speaks to the institutional integrity of our country. So this is an unusual thing. We are both trying to come back to normalcy, deal with totally abnormal challenges, and do what we do best, which is try to make a more perfect union. It's an exciting time. We've got to not just listen to folks we agree with, but listen to folks we don't. And you know, one of my fondest memories of the inauguration was the grace and generosity that President Bush showed me and Laura Bush showed Michelle, and it was a reminder that we can have fierce disagreements and yet recognize each other's common humanity, and that as Americans we have more in common than what separates us. I think if Americans would love their neighbor like they would like to be loved themselves, a lot of the division in our society would end. That's what this means. It's a new beginning. And everybody needs to get off their high horse and reach out to their friends and neighbors and try to make it possible. If, in fact, as George said, we're looking for what binds us together, the American people are strong, they're tough, they can get through hardship, and there's no problem they can't solve when we're working together. I think that was the theme of Joe's inaugural speech, and I think all of us discovered that we're at our best when we're all moving in the same direction. America's a generous country with people with great hearts. All 3 of us are lucky to be the president of this country. Mr. President, I'm pulling for your success. Your success is our country's success, and God bless you. I'm glad you're there, and I wish you well. You have spoken for us today. Now you will lead for us, and we're ready to march with you. Good luck. God bless you. Joe, I'm proud of you, and you and Kamala need to know that you've got all of us here rooting for your success, keeping you in our prayers, and we will be available in any ways that we can as citizens to help you guide our country forward. We wish you Godspeed. हमने अमेरिका की आलोचना तो आज बहुत की, लेकिन अमेरिका में कुछ बातें बहुत अच्छी भी हैं और वो भी हमें सीखनी चाहिए। अब आप सोचिए, अमेरिका के 3 पूर्व राष्ट्रपति और वो कह रहे हैं वी आर प्राउड ऑफ यू जो, और वो ये भी कह रहे हैं कि नए राष्ट्रपति की सफलता, जो बाइडेन को कह रहे हैं आपकी सफलता ही इस देश की सफलता है। अब आप कल्पना कीजिए, क्या हमारे देश में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए कभी ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं आपके साथ हूं, आपकी सफलता ही देश की सफलता है? क्या सोनिया गांधी कभी नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकती हैं जब वो उन्हें इस तरह शुभकामनाएं देना चाहें? या हमारे देश के जो और विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता हैं, क्या कभी भी वो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कहेंगे?
आपको कुछ मुद्दों के बारे में हम बताते हैं जिस पर भारत के विपक्षी दल कभी भी एक होकर उन्होंने आवाज नहीं उठाई। हमारे देश ने न जाने कितने बुरे दिन देखे, कितनी चुनौतियां देखी, लेकिन तब भी हमारे विपक्षी दल एक बार भी, एक मिनट के लिए भी एक साथ नहीं आए। कोरोना महामारी के दौरान हमारे विपक्षी दल कभी एक साथ नहीं आए। सीमा पर चीन की घुसपैठ हो गई, हमारे विपक्षी दल एक साथ नहीं आए। पुलवामा का हमला हुआ, आतंकवादी हमला, हमारे विपक्षी दलों ने आलोचना की। बालाकोट का हमला हुआ, हमने जो किया उस पर सवाल उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना ने की, विपक्षी पार्टियों ने उस पर सवाल उठाए। मुंबई में इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ, विपक्ष एक साथ नहीं आया। हमारी संसद पर हमला हो गया तो भी हमारे देश के नेता एक साथ कभी नहीं आ पाए। और वहां 3 पूर्व राष्ट्रपति जो कि अलग अलग विचारधाराओं के हैं, जिसमें से एक विरोधी दल के भी हैं, और वो तीनों एक साथ खड़े होकर जो बाइडेन को अपनी शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये बात भारत के नेताओं को, भारत की व्यवस्था को अमेरिका से जरूर सीखनी चाहिए।